15 محراب کارڈ پہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. ادھر بھی بابا جی کی سندھی ٹوپی بھی محراب کی صورت ہے اور سرکار کے روزے کی محراب بھی نظر آ رہی ہے. یہ کون سی محراب ہے؟ میرے علم ناقص علم کے مطابق پل صراط سے جو لوگ گزر جائیں گے، پل صراط گزرنے کے بعد جنہوں نے گرنا ہے دوزخ میں گر گئے، جو بچ گئے، پل صراط کے دوسرے کنارے پہ جو لوگ جنتی بن جائیں گے، میزان سے بھی ہو آئے ہیں، پیچھے تکڑیوں میں اعمال تل گئے اور جو ہونا تھا ہو گیا. اب آگے جنت ہے، لیکن یہ جنتی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. وہاں یہ کنترا محراب کچھ تفسیروں میں ہے کہ یہ ایک پل ہے یا پل صراط ہی کا آخری حصہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ محراب نما دروازہ ہے. بہرحال یہاں پر روکا جائے گا جنتیوں کو، اور وہ رحمان رب جو نہیں چاہتا کہ آدم کا ایک بھی بیٹا جو ہے وہ ابلیس کی بات کو پورا کرے کہ نہیں یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طرح معافی کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے رحمت للعالمین بھی ہمارے پاس بھیج دیے. وہاں اللہ کریم کی طرف سے ان جنتیوں کو دکھایا جائے گا کہ آپ کے اعمال کے بدلے جو آپ کی ساری زندگی کے جو اعمال تھے، کیونکہ شادی کہتے تھے اعمال ضائع نہیں جاتے، تو وہ جو بھی اعمال تھے اچھے برے اور جو پلس مائنس ہوا، اس کے بعد آپ کا جنت میں یہ مقام ہے. آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسے کو اگر کہا جائے گا کہ تھوڑا کچھی باقی پلاٹ نکلے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کا ٹوٹل ریزلٹ ہے آپ کے اعمال کا، اس کے بدلے میں جنت میں یہ گھر آپ کو ملا ہے، اتنا ہی بڑا جنت مل جائے. لیکن ساتھ ہی اب وہاں اسی طرح اسکرین پہ ویڈیو پہ دکھایا جائے گا میرے ہی کسی دوست کو، بھائی کو، رشتہ دار کو، جاننے والے کو جو دوزخ میں ہوگا اور تڑپ رہا ہوگا، اور اللہ کریم کہیں گے کہ یہ تمہاری وجہ سے دوزخ میں ہے کیونکہ تم اسے معاف نہیں کرتے تھے اور تم نے نہیں کیا. اگر تم اسے معاف کر دو تو بدلے میں یہ ایف چینل میں یا بحریہ ٹاؤن میں یا جنت میں نبی کریم کے گھر کے ساتھ والا گھر تمہیں مل سکتا ہے. اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی شدت سے ہمیں پاس کرنا چاہ رہا ہے. ہم اس کے پاس ہوتے ہی نہیں. وہ تو ہمارے پاس ہے، اللہ تو سب کا ہے، لیکن تھوڑے جن کو ہی اللہ کا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے کنترا جہاں پہ دوبارہ ایک چانس دیا جائے گا کہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں اس شخص کو جس کے اوپر آپ کو بہت ہی غصہ ہے اور وہ بہت ظالم ہے، ڈیفینیٹلی اس نے تو ظلم کیا ہوگا، لیکن اللہ کریم چاہیں گے، نبی کریم چاہیں گے کہ آپ انہیں معاف کر دیں. کیونکہ سرکار دو عالم تو تڑپ رہے ہوں گے کہ وہ تو باقی امت کو، کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کے رب میں رحمت للعالمین نہیں ہے نا، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. باقی انبیاء کی امتیں بھی انہوں نے ہی بخشوانی ہے، انہوں نے بھی انہیں ریکویسٹ کرنی ہے. تو اللہ کریم کا تو سادہ جواب ہوگا کہ یار میں نے تو سارے معاف کر دیے ہیں، میں نے تو معاف کر دیے، لیکن یہ آپس میں نہیں معاف کر رہی ہے، تمہارے بندوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے. وہاں پر بھی اللہ کریم نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں گے، وہاں پر وہ لوگ جو اپنے کسی قریبی عزیز رشتہ دار کسی کو بھی معاف نہیں کر رہے، اللہ کریم اس کو جنت میں مزید اس کے درجے بڑھائیں گے. اس کا مطلب ہے وہاں بھی عمل کی گنجائش ہوگی. ویسے تو عمل موقوف ہو جاتے ہیں فوتوں کے ساتھ کہا جاتا ہے. اس کے اوپر ہماری دعا بھی بابا جی نے جو کچھ ہمیں سکھایا، وہ ایک لائن بولتے ہوتے تھے، آنکھیں بند کرو، دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھو، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تم اس کو دیکھو اور دل صاف کر دو، سب کو معاف کر دو. بس یہ ٹکراؤ کا ہوتا ہے. اور اپنی غلطیوں پر بھی شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے پیش ہو جاؤ. اب ہم میں سے نہ کوئی معاف کر رہا ہوتا ہے اور نہ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے. اور میں نے بھی 20 سالوں میں یہ دیکھا کہ نیک اور مظلوم بھی کئی بار بہت سخت دل ہو جاتے ہیں. اب ظالم پھنسا ہوتا ہے
लेकिन वो माफ करने के तैयार नहीं होते। हालांकि नबी रहमत का ये सेवा भी नहीं था और यही मैसेज था कि किसी तरह कोई बच जाए। इसी के ऊपर इन बच्चों ने मिल के एक छोटा सा प्लेन कंतरा मेहराब के नाम से तरतीब दिया है। डेफिनेटली ना ये प्रोफेशनल फनकार हैं, कोई मैच्योर एक्टर्स नहीं है, इनकी छोटी मोटी गलतियां माफ कीजिएगा। जिस तरह भी इन्होंने ये इनका शौक था, इन्होंने बड़ी रिहर्सल से तैयार किया है, लेकिन इसमें भी एक मैसेज है जो ट्रू लाइफ स्टोरी पे है। एक डॉक्टर की जिंदगी की कहानी है, एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की जिंदगी की कहानी है। मुझे कुछ दोस्त अपने बीच में नजर आ रहे हैं, अगर उन्हें पता भी चल जाए तो बराए मेहरबानी उनका नाम ना लें, क्योंकि अब वो हमें नहीं है। उन्हें कैंसर से भी ज्यादा मुसीबत हो गया था और उसका इलाज कहीं नहीं था। बहरहाल ये उनकी जाती जिंदगी की कहानी है, जिसे ये बच्चे आपके सामने पेश करेंगे। कंतरा मेहराब। अमेरिका पहुंचते ही डॉक्टर जफर की ऑपरेशन से पहले ही हालत बिगड़ गई। ना घर डिठा ना घर वाला डिठा, तेरिया किस कम दित्तियां न्यादा। इल्म पढ़िया ते अमल ना कीता, तेरिया किस कम कीतियां वादा। चिड़ी फसी हथ बादा, उठे अमला ते होने ने नवेड़े, उठे अमला ते होने ने नवेड़े। किसे नहीं तेरी बात पूछनी, उठे अमला ते होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। ये झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े, झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े। किसे नहीं तेरी बात पूछनी, उठे अमला पे होने देना। किसे नहीं तेरी बात पूछनी, उठे अमला पे होने देना। किसे नहीं तेरी बात उसकी लाश अमेरिका के मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दी गई। एक दिन जो बनया सो ठहना, जो खड़िया सो भजना। एक दिन जो बनया सो ठहना, आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना। आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिना दा मेला ए ते बहुती देर में बहना। 4 दिना दा मेला ए ते बहुती देर में बहना। जो बीजेगा साधक चलिया होई बटना कहना, उठे अमला के होने देना तेरे। किसे नहीं तेरी बात पूछनी, उठे अमला के होने देना तेरे।
ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਫਨਾਉਣਾ ਕੋਲ ਨੀ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਫਨਾਉਣਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ये तो हमारा बड़ा मशहूर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, इसकी कोई फैमिली नहीं है? मेरी कल ही इससे बात हो रही थी, इसकी कोई फैमिली नहीं है, इसका कोई नेक्स्ट ऑफ किन नहीं है, और इसने डॉक्टर समरीन को भी डिवोर्स दे दी थी। काफ़ी अच्छी खातून थी, इसके रिश्तेदार, इसका सब कुछ, इसका पैसा और अमेरिका ही थे। यानी अब इसकी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं जाएगी? क्यों? पाकिस्तान सिर्फ डेड बॉडीज के लिए रह गई? अच्छा चले ठीक है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल वालों ने बच्चों के तजर्बे के लिए डेड बॉडी मांगी हुई है, आप इस लाश को मुर्दा खाने में जमा करवा दें। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ किरदार निभा रहे होते हैं। कभी देने वाला हाथ होता है तो कभी लेने वाला, कभी मूसा के वस्फ पे होते हैं तो कभी फ़िरौन बन के अपनी फ़ौज को भी ले डूबते हैं। कभी उसी मोहसिन की एहसान फरामोशी करके शिमर बन जाते हैं। फ़कत इतना कि एहसने तकवीम से असफला साफलीन तक का सफ़र सेकंड्स के 1000वें हिस्से में तय कर जाते हैं। और यही आदम अगर तौबा करे तो इसी सेकंड के 1000वें हिस्से में अशरफुल मखलूकात हो जाता है। और कब इंसान आदम के रूप की तहकीर करके अपनी ज़िंदगी के तमाम अमाल गंवा बैठता है। ऐसी ही एक कहानी जो उस किरदार की झलक है जो हम एहसान फरामोशी करके अपने मोहसिन के दर को ठुकरा के दर दर से दूर दूर लेते हैं। मगर माफ़ी सिर्फ एक ही दर से मिलती है। आइए इन किरदारों में अपने आप को ढूंढते हैं, कहीं ये हम तो नहीं। अम्मा ऐबे ने भी हुणे मरना सी, मेरा घट्टो घट मेडिकल कॉलेज च दाखला तो लैन दिंदा, 2-4 साल ठहर के नहीं सी मर सकदा, और मैं तो किसे राह पै लैंदा। ना पुत्त ना, इंज नहीं कहीदा, वो मुसब्बबुल अस्बाब है, अल्लाह ते भरोसा रख, वो सारियां दा पालनहार है, आपे साडा भी कोई सबब बना देगा। अल्लाह ते तवक्कल रख, ए ना होवे वो किथे तेन दोज़ख विच सुट दे। ओ अम्मा तवक्कल शवक्कल मैनू ना दस, तवक्कल करदा करदा अब्बा अगले दिन टुर गई, और मैनू अगे का कुछ नहीं पता, जो कुछ है इत्थे ही है जेड़ा सामने नजर आन दिया है। तेनू अपनी जन्नत दी पई है, और मैं तेनू इसे दुनिया च जन्नत बना के विखावांगा, और मैनू एक बारी अमरीका जा लेंदे, इत्थे दोज़ख च सड़न दे हो। ना काका ना, अल्लाह बनना छड़ दे, अल्लाह ते छड़ दे। ए भैन वरते वे किते सबर नाल बैठी हुई है। ओए अम्मा तेनू क्यों समझ नहीं आती, इस भैन नू अब्बा बीए करा गया है और मैं रुक गया। कोई कार है? आ जाओ। नीरजो, मैं ताड़े लिए रोटी टुक्कर ले आई हाँ। हलीमा पुत्र ए फड़ हांडी। एडी खामोशी क्यों है? की होए? कहते हैं की दसा ए कहता है लाहौर जाना, जमीना बेचो, कुछ भी करो, मैं लाहौर जाना है, डॉक्टर बन के आऊँ। दसो किस तरह भेज दवा मैनू लाहौर? कितों चुकांगी ऐसे खर्चे ते कौन भरेगा एरिया फीसा? हो जफर पुत्र ए किहो जिहियां गल्लां कर रहे हैं, तू मां विच टुरे है, ए जमीन ते मां
तेरा खर्चा मैं चुकांगा, जमीन बेचने की की लोड़ है। और ना ताया ना मेरे सिर साहब में चार और तुसी सारे चाहते हो मैं अपनी आने वाली जिंदगी ताकि मर्जी ना गुजारा। और मेरे एक गल कान खोल के सुन लो, मेरे को कोई आस उस ना रखियो, मैं एक बार अमेरिका गया मैं मुड़ वापस नहीं आना। ओ पुत्र वो गल तो सुन, और तू आसा छड़, तू इनू करदा हसना समझ रहा बा। आओ आओ देखा ना करदा हसना है कोई। पाजी मैं तो तेरी हलाल ही खुआया सी, ये साडे घर की जम पिया जी, पता नहीं मैं किहदी शाम ते अमाल ओ ना काकी ना, ओ ओदी जवानी है साडी आजमाइश है, कि तू जाननी है जवानी बड़ी मुंह जोर होंदी है। कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र ना करया कर। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। यस सर, मुझे आपसे यूएस एमएलए के स्टेप 2 के बारे में गाइडेंस चाहिए। जफर, जहाँ तक मुझे यहाँ पड़ता है तुम्हारा तो अभी फाइनल ईयर चल रहा है एमबीबीएस का, अभी एमएलए की गाइडेंस की क्या जरूरत है? सर आप मुझे समझे नहीं सर, बेसिकली मैं तंग आ गया उस जहापुरे से, मैं जल्द से जल्द निकलना चाहता हूँ यहाँ से। बेटा तुमने मैट्रिक यहाँ से किया, एफएससी तुमने यहाँ से की, और वो एमबीबीएस जो अभी तुम यहाँ से कर रहे हो, इन गरीब लोगों पे मरीजों पे तजर्बे कर करके तुम यहाँ तक पहुंचे हो, और ये लोग तुम्हें जंजालपुरा लग रहे हैं। और सर आप मुझे समझ नहीं रहे सर, मेरा एम निगाह से हद्दे निगाह तक जाने का है सर। ये सब कुछ तो मेरा महज एक आरजी पड़ाव है, मेरी मंजिल अमेरिका है सर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई एम गेटिंग लेट फॉर माई लेक्चर। सर प्लीज मुझे रिकमेंड जरूर कीजिए। होपलेस बेटा, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। राणा पाल, ये सफर बड़ी हवाओं में आजकल। हर साल टॉप ही करता है, इस साल का भी 10 ग्रेजुएट हो जाएगा और मैं रह जाऊंगा। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन आजकल सर के साथ बड़ा चिक्कू बना फिर रहा है, बिना मतलब के ये किसी को मुंह भी नहीं लगाता। ये एमएलए की चार्टी ले, अमेरिका में रेजिडेंसी तो इसे तभी मिलेगी जब सर अहमद का रिकमेंडेशन लेटर इसके पास होगा, वरना ये इज्जत अपने बाप की नहीं करता, सर अहमद की कहाँ करेगा। ज़फ़र ना सिर्फ डॉक्टर बना बल्कि बिल आखिर अमेरिका चला गया और जिगर की पैवंदकारी का बहुत बड़ा सर्जन भी बना। एक नौ मुस्लिम डॉक्टर खातून ने उससे शादी भी की, बेतहाशा पैसा कमाया, अल्लाह ने 2 बच्चे भी अता किए, लेकिन जिनसी बेरारवी और शब रोज़ की शराब नोशी की वजह से उसकी बीवी उससे तलाक लेने पर मजबूर हो गई। अमरीकी कानून के मुताबिक चूँकि आधी जायदाद बीवी को जानी थी, अपनी जायदाद बचाने की खातिर वो पाकिस्तान आ गया और यहाँ आकर उसको तलाक दी। बच्चों समेत यहाँ आने पर उसको पता चला कि ये जगह तो अमेरिका के मुकाबले में भी पैसे कमाने के लिए जन्नत है, क्योंकि अमेरिका में तो हर वक्त कानूनी चाराजोई, ज़रा सी गलती के ऊपर डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल होना या ख़तीर रकम का जुर्माने के तौर पे अदा करना लाजिम होता था, जिसकी तलवार हर वक्त डॉक्टर के सर पे लटक रही होती थी। इस मुल्क में उसको पूछने वाला कोई ना था, किसी किस्म के तिब्बी कवानीन ना थे, अवाम इतना शऊर नहीं रखती थी। ज़फ़र और उसके बच्चे दिन दुगनी रात चुगनी अपनी अयाशियों की तरक्की इस मुल्क में करने लगे। डैड मुझे एक हैवी बाइक ले दे, जरा मटे किस्ती करनी होती है। और नौमी बेटा, डॉक्टर ज़फ़र का बेटा है, मैं तुझे एक नई प्राडो निकलवा के देता हूँ, उस पे आई लव यू डैड। पर पापा मुझे तो हैवी बाइक ही चाहिए और वो मुझे फार्म की कीज भी दे दें। आप मुझे गॉड फॉरसेकन कंट्री में ले तो आए, ये कुछ भी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। I'll party there with my friends. Give me the keys. ये लो बेटा। Thank you, Dad. And have party. You're the best. Enjoy. Do whatever you like.
What a funny old man. I understand. पापा ये आपके लेवल का स्टफ है. It's your tough time. बदनते सितारे बैठे हुए. He's my son. पुत्र है मेरा. Hello old boy. कैसे आना हुआ? ਉਹ ਜ਼ਾਫਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਯਰਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਫਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਿਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 20 ਰੁਪਈਆ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਜ਼ਫਰ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਲੰਮਿਆ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬਰ ਚ ਲਿਜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਵਾ ਮਾਂ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਤਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਆਪਣਾ 50 ਲੱਖ ਢਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੁੜੀਓ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਘਰੋਂ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਸਲਾਮ ਨਾ ਦੁਆ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜ਼ਫਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤਾਈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਜਾ ਆਮਨਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਮੇਲਾ ਆ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ हलीमा पुत्र भरा की कहता सी थे माँ तुझे तो पता है जफर तो कभी हमारा था ही नहीं वो तो तुझसे डॉक्टर बना है हमें तो वो छोड़ दिया है ये तारा जी का आसरा ना होगा तो हम रोज जाते वो पैसा कमाने वाली मशीन बनना चाहता था तो बन गया कहता है 20 मिलियन लाओ की कहते हलीमा पुत्र की लाओ ताई 2 करोड़ लगता जे हाय वे मारी आमना दे अबू ओनु कोई भुलेखा लगया होना है ओ ना काकी ना ओए ओनु कोई भुलेखा नहीं जे भुलेखे जी असी सां तुसी ओनु याद ते कराना सी कि आज जो डॉक्टर ताड़ी बदौलत है ओ जेड़े सौदे ने अल्लाह नाल कीते ने ओ उन्हां दा मुੱਲ इनसानां तो थोड़ी मंगीदा सेवा नहीं जे पत्थर खा के वो बच्चे सेवा करा के साडे नबी ने दुआ ही दी है वो ऐसे दरूद है जफर लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं पहचान लिया डॉक्टर प्रोफेसर साहब क्या हाल चाल मैं तो ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये बता मैंने अपना एक मुलाजिम तुम्हारे यहाँ भेजा था चेकअप के लिए तुम्हारे असिस्टेंट ने तो उसे अपॉइंटमेंट देने की भी जहमत गवारा नहीं की डैड ये मेरे पार्किंग एरिया में किसकी कटोरा खड़ी है ऐसे लग रहा है जैसे आपकी अमरीकी BMW ने अपने कोई नजायज बच्चा दिया हो
वो बेटा वो ये प्रोफेसर साहब की खोता करोला होगी। प्रोफेसर साहब हल्ले की करोई रखीजे, साढ़े तो बच्चे भी जवान हो गए हैं। जफर जफर जफर, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती कि गाड़ी का काम सिर्फ लेके आना और लेके जाना होता है, वो मेरी जरूरत पूरी कर देती है। बेटा ये प्रोफेसर साहब ना किसी जमाने में हमारे हॉस्टल के वार्डन भी हुआ करते थे, उस वक्त भी इनके पास यही खोता करोला थी। प्रोफेसर साहब ने अभी तक ना अपनी गड्डी बदली है ना ही बेगम बदली है। जफर, तुम जानते हो मेरी छोटी सी प्रैक्टिस है और हम पाकिस्तानियों के पास ऐसा पैसा नहीं होता कि इतनी अय्याशियों में उड़ा सके। मेरे मरीज भी मेरे जैसे ही हैं। ओ प्रोफेसर साहब, ओ प्रोफेसर साहब, ओए आपको ना प्रोफेसरी करनी आई और ना ही पैसा कमाना आया। ओए इस मुल्क में तो पैसा कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है। ओए इन जाहिल शोबाजों की तो जेबों से पैसा गलियों चौराहों सड़कों में जगह जगह गिर रहा है। ओए आपको बस वो गिरा हुआ पैसा उठाने का फन आना चाहिए। और शराब जफर, तुम्हारी ये तरबियत की थी मैंने, इस गिरे हुए पैसे की खातिर मैं इतना कभी भी नहीं गिर सकता कि इंसानियत से ही गिर जाऊं। ठीक है, हॉस्टल में जब पहली मर्तबा मैंने तुम्हें पकड़ा था तो तुम्हारी माफी इस बात पे हुई थी कि तुम इससे अल्लाह के लिए तौबा कर लोगे। तुम्हें पता है ये तुम्हें जिगर का कैंसर कर देगी। ओ प्रोफेसर साहब, वो आप लोग जिससे तौबा करते हो ना, वो मैं मानता ही हूँ उसे। मैं खुद एक वर्ल्ड क्लास लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। जिस दिन मुझे कैंसर हुआ ना, मैं खुद देख लूंगा कैंसर को। जफर, तुम्हें कैंसर से ज्यादा खतरनाक मर्ज लाहक हो चुका है। तुम फिरौन बन चुके हो और न जाने तुम जैसे कितने फिरौन अल्लाह ने गर्क कर डाले हैं। अल्लाह की पकड़ तुम्हारी अकड़ एक झटके में निकाल देगी। क्या बना आपकी रिपोर्ट्स का? आई हर्ड यू थ्रू योर ब्लड यस्टरडे। आपको कौन की उल्टी आई है? आपको फौरन सेफ चले जाना चाहिए। हाँ बेटा, मुझे जिगर का कैंसर डायग्नोज हुआ है और ट्रांसप्लांट भी अरेंज हो गया है। They have asked me to arrange $20 million। मैं सोच रहा हूँ मैं ये प्रॉपर्टी, फार्म हाउस सब कुछ फाइंड अप करके वापस यूएस चला जाऊँ। मैं तो वहीं रहूँगा, तो तुम दोनों को भी अपने साथ लेके जाओ। Dad, is it that expensive? ये तो महंगा इलाज है। नहीं बेटा, अगर तुम दोनों में से कोई मुझे अपना जिगर डोनेट कर दे तो अखराजात काफी कम हो सके। Dad, I'm completely useless for you। और मुझे यहाँ ज्यादा मजेली फीलिंग आती है। मुझे कहीं नहीं जाना। And Dad, आपको पता है अमेरिका का नशा बहुत महंगा। सारा सुन रही है इस बेहुदा को? ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है? इसे अल्लाह रसूल का कोई खौफ नहीं है। पापा, अल्लाह रसूल, आज तो मुझे माँ याद आ गई। वो यही बातें मुझे और नोमी को सिखाया करती थी। आपको याद है आपने उनके साथ क्या किया था? थके मेरे घर से बाहर निकाला था और कहा था इन तकिया उसी बातों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। सारा, मैं अकेला पड़ गया। आई नीड समवन देयर। तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। तुम तो मेरे साथ यूएस चलोगी? प्लीज। सॉरी पापा, मुझे तो अभी जिंदगी जीनी है अपनी। मैं नहीं करना लाइफ। I am finished. I am finished. अमेरिका पहुंचते ही डॉक्टर जफर की ऑपरेशन से पहले ही हालत बिगड़ गई। किस कम पड़िया ना
घर डिठा ना घर वाला डिठा तेरिया किस कम दित्तियां न्यादा इल्म पढ़िया ते अमल ना कीता तेरिया किस कम कीतियां वादा पता कद लग सी जदों चिड़ी फसी हथ बादा उथे अमला ते होने ने नवेड़े उथे अमला ते होने ने नवेड़े किसे नहीं तेरी बात पूछनी उसकी लाश अमेरिका के मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दी गई। जो खड़िया सो भजना जो पड़िया सो ठहना आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना आखिर छड़ने महल। ये तो हमारा बड़ा मशहूर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, इसकी कोई फैमिली नहीं है? मेरी कल ही इससे बात हो रही थी, इसकी कोई फैमिली नहीं है, इसका कोई नेक्स्ट ऑफ किन नहीं है और इसने डॉक्टर समरीन को भी डिवोर्स दे दी थी। काफ़ी अच्छी खातून थी, इसके रिश्तेदार, इसका सब कुछ, इसका पैसा और अमेरिका ही थे। यानी अब इसकी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं जाएगी? क्यों? पाकिस्तान सिर्फ डेड बॉडीज के लिए रहेगी? अच्छा चले ठीक है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल वालों ने बच्चों के तजर्बे के लिए डेड बॉडी मांगी हुई है, आप इस लाश को मुद्दा खाने में जमा करवा दें। आओ जी आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ जी। आओ बेटा आओ। ओ मेरे पोता है, ओ मेरे सोने आए, आ जाओ जी अंदर आ जाओ, आ जाओ जी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम डॉक्टर अहमद है, मैं आपका जो बेटा था जफर उसका उस्ताद हूँ। ये उसके बच्चे हैं, बिल्कुल बेआसरा हो गए हैं। जफर अमेरिका ऑपरेशन करवाने गया था अपने जिगर के कैंसर का, वहां दौरान ऑपरेशन ही उसकी वफात हो गई। अब इन बच्चों का ना कोई वाली वारिस है, ना इनके सर पे कोई छत है। मैं बड़ी मुश्किलों से आप लोगों का आता पता ढूंढ के इन्हें आपके हवाले करने आया हूँ। ओ बैठ जाओ, खलो क्यों गए हो? ना लाया ही ना है, साढ़े कुछ नहीं लगते। केरा जफर ते केरे बच्चे, मैं अपने माँ प्यो की कली औलाद, हम किसी जफर को नहीं जानते, हमारा कोई जफर नहीं। आप जो कोई भी हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ ले जाए और ये जो कार्टून आप साथ ले आए ना, एकदम साथ ले जाए। लेकिन पुप्पो, कोई पुप्पो नहीं। ओ मेरी सोनी थी ना, ओ घर आए मेहमाना ना लंच नहीं गल करी थी। ओए साडे सोने नबी दा सेवा नहीं जे, ओ चल माफ कर दे इन्हां ताया जी, कोई माफी शाफी नहीं, कोई दुआ शुआ नहीं, कुछ लोग इस काबिल होते हैं। ओ मन्निया तू नेक है, ओ मन्निया तू मजलूम भी है, पर दुआ तो देनी है ना। ओए मेरे सच्चे सोने नबी का हुक्म भी है, ओ चल पुत्र मेरे सोने सच्चे नबी दे वास्ते माफ कर दे। ठीक है, कर देता माफ। पता सी ओ मेरे सच्चे सोने नबी दे वास्ते अगे तेरा गुस्सा हार मान जाएगा। ओ तुसी बैठ जाओ ना, तुसी खलो क्यों गए हो? आओ सारे मिल के दुआ करिए। सब लोग आंखें बंद करके तमाम मुल्क, पूरी कौम, बल्कि तमाम इंसानियत और कुल कायनात के लिए दुआ करेंगे। आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए इर्द गिर्द से फारिग हो जाएं, सिर्फ अपने अंदर देखें। अल्लाह मौजूद है, हाजिर नाजिर, देख रहा है, सुन रहा है। अल्लाह गाफिल नहीं है, हम गाफिल हैं। एक लम्हे के लिए ध्यान करें तो सही अंदर।
वो देख रहा है, सुन रहा है। आप अपना ध्यान उसकी तरफ करें और अपने दिल की आंखों से देखें, क्या है एक एहसास, एक दर्द। कोरोना से लेके हर बरबत्ती की खातिर, हर मसले के लिए आज उसके रूबरू खुद को पेश करो, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, कुल कायनात को। और अपने दिल की आंखों से देखो, अगर कुछ नजर नहीं आ रहा तो दिल को पाक करो, इसमें सारे बुत तोड़ दो, नफरत के, हसद के, कीने के, बुग़्ज़ के, बदलों के। आज अल्लाह की खातिर, अल्लाह की नादान मखलूक को दिल से दुआ दे दो। अगर किसी ने कभी आपकी जान, माल, औलाद, इज्जत पे हाथ डाला भी है, उसे अल्लाह की खातिर, अल्लाह का बेवकूफ बंदा समझ के अल्लाह के सर पे एहसान करते हुए दिल से दुआ दो कि या अल्लाह, मैंने अपने खुले और छुपे दुश्मनों को भी माफ किया, तू भी उन पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ किया, तू भी सबको माफ कर। और अब अपने भी बड़े से बड़े गुनाह याद करके, जो कभी आपने कोई भी किया है जिसका सिर्फ गवाह अल्लाह है, अपनी नेकियां भी अल्लाह को पेश कर दो। कभी कभी ये नेकियों का जोम और इबादतों का जोम भी हमें मरवा देता है कि हम बहुत नेक हैं। शैतान भी यहीं से मार खा गया था। अल्लाह को अपनी सारी नमाजें, तस्बीहां, वजीफे पढ़ के जो सवाब आपको मिला है और जो नेकियां आपने कमाई हैं, भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, गिरे हुए को उठाया, किसी यतीम, बेवा, मिस्कीन, मुसाफिर, कैदी की मदद की है, तो सब नेकियां भी आज अल्लाह के दरियाए रहमत में फेंक दो कि या अल्लाह, अगर दानिस्ता या ना दानिस्ता, गलती से या जानबूझ के मेरे से कभी किसी का दिल दुख गया, ज्यादती हो गई है, हक मारा गया, तो या अल्लाह मेरी नेकियों में से, सवाब में से जितना तू मुनासिब समझता है उसके खाते में लिख दे और उस बंदे के दिल में भी मेरे लिए रहम डाल दे, ताकि मेरी इस दुनिया में ही जान छूट जाए। और जो नेकियां बच जाएं वो रबीउल अव्वल के महीने के हिसाब से या अल्लाह नबी पाक को ही दे दे, वो अपनी उम्मत के जिस मर्जी मुस्तहिक में बांट दे। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ गुनाह। आज गुनाहगारों वाली दुआ करो। आप जितने मर्जी गंदे हो, जितने प्यार से 3 बार अल्लाह पुकार सकते हो, अपने दिल में पुकारो, अपने ख्याल में, वो ख्याल भी सुनता है। बहुत प्यार से 3 बार अल्लाह कहें और फिर दिल के कानों से सुने अल्लाह क्या कह रहा है। नूर की बारिश ही बारिश है, आप हैं और अल्लाह है। अल्लाह 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 والسماء رفعها ووضع
एक बार फिर दुआ करते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शायद दे दे, अल्लाह उन्हीं की सिफारिश मान ले। अगरचे अल्लाह उन मामलात में बहुत सख्त है, मैंने उसे शिर्क के जुर्म से भी ज्यादा सख्त पाया है, तो आदम की तहकीर है, तो उसके बंदे की शान में गुस्ताखी है। लेकिन वो बंदा ही माफी ले दे तो ले दे। आंखें बंद करके खुद को अपने अपने दिलों में दरबार नबी में पेश करें। आप दरबार नबी में हैं, तमाम इंसानियत की तरफ से हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके दिलों में मौजूद हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और बहुत प्यार से 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने दिलों में प्यार से कहें, खलूस डाल के कहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका नाम बहुत मीठा है। प्यार से 3 बार अपने ख्याल में 3 बार मोहम्मद 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 कह के उन्हीं के रूबरू आजिज़ी से पेश रहें कि वो सबको माफी ले दें अल्लाह से।
आंखें खोल ले आप। आंखें तो खुल गई है, आंखें तो खुल गई है। बेटा कहते क्यों नहीं हो कि अल्लाह है? मोहम्मद अल्लाह सर अल्लाह ही तो है। बेशक बेटा अल्लाह ही है। कर्टन लाइट खत्म हो गई। पढ़ी नमाज ते न्याज न सिखिया तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा पढ़ी नमाज ते न्याज न सिखिया तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा ना घर डिठा ना घर वाला डिठा तेरिया किस कम दितिया न्याजा इल्म पढ़िया ते अमल ना कीता तेरिया किस कम कीतियां वादा तेरिया किस कम कीतियां वादा बुल्ले शाह पता तद लग सी जदों चिड़ी फसी हथ बादा उथे अमला ते होने ने नवेड़े उथे अमला ते होने ने नवेड़े किसे नहीं ते